Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear student. This is Cambridge Mathematics 4024 and I am your teacher Gule Arzu from Multan Public School and College Multan. So my dear student, last week we were doing the topic matrices and we have done the topic how we can multiply or add two matrices and how we will do the multiply a matrix by a scalar value, and we had done the exercises related to these topics. Now today we have to start the multiplication of two matrices. Okay, how we can multiply by one matrix by another matrix. Okay, first of all we will check when two matrices are conformable for multiplication. So multiplication of two matrices. Okay, here I will tell you about the conformation of the multiplication of two matrices. So two matrices are conformable for multiplication. This is very much important thing. First of all, you will check these are two matrices are conformable for multiplication or not, then you will multiply them. So two matrices are conformable for multiplication when number of column, this is your main thing. Okay, when number of column in first matrix mean, let us suppose you are having two matrix A and matrix B. So matrix A will be your first matrix and the matrix B will be your the second matrix. Okay, in first matrix is equal to the number of rows in the second matrix. It means that you will note down the number of columns in first matrix and number of rows in second matrix. Then these two matrices are conformable for multiplication. Let us suppose we have to suppose two matrices. Okay, let the matrix A is equal to 3 4 5 6 and matrix B is equal to 1 2 3 0. Okay, let's check them, they are conformable for multiplication or not. First of all, we will note down the number of column in the first matrix, which is called as the matrix A. Number of column equal to 2. You can see that first vertical line, this is second vertical line, and that's why the number of columns in this matrix is 2. Now we will check the number of rows in our second matrix B. Okay, so there are two horizontal lines, so it means the number of rows are 2. It means that you can see here the number of column in this matrix is equal to 2 and number of rows in this matrix is equal to 2. So it means that number of column in first matrix is equal to number of rows in second matrix. So that's why these two matrices are conformable for multiplication. Now let's check them how they will multiply. Now we will do the process to multiply them. So A multiply by B. Okay, it means that you will write like this, AB is equal to A की जगह पे आप matrix A लिखोगे and you will place the value of matrix B. ठीक है, आप और A, दिस इज द वैल्यू ऑफ मैट्रिक्स A की जगह पे मैट्रिक्स A की वैल्यू पुट करें और B की जगह पे मैट्रिक्स B की वैल्यू पुट करें. ठीक है, सो A B. नाउ यू विल बी मल्टीप्लाई देम. ठीक है, आप देखें जब हम चेक करते हैं कि ये आर कन्फर्मेबल फॉर मल्टीप्लिकेशन और नॉट, तो हम फर्स्ट मैट्रिक्स में नंबर ऑफ कॉलम्स को देखते हैं और सेकंड मैट्रिक्स में नंबर ऑफ रोज को देखते हैं. बट व्हेन वी मल्टीप्लाई देम, तो हाउ यू विल मल्टीप्लाई देम. अब आपने मल्टीप्लाई करने में फर्स्ट मैट्रिक्स की रोज को मल्टीप्लाई करना है सेकेंड मैट्रिक्स के कॉलम से. तो दीज टू आर डिफरेंट थिंग. चेकिंग के लिए कि दे आर कन्फर्मेबल फॉर मल्टीप्लिकेशन, तो फर्स्ट मैट्रिक्स के कॉलम्स की नंबर ऑफ कॉलम्स ऑफ फर्स्ट मैट्रिक्स देते हैं और सेकंड मैट्रिक्स की नंबर ऑफ रोज देखते हैं. अब इनका मल्टीप्लाई करने का क्या प्रोसेस है. अब फर्स्ट मैट्रिक्स की फर्स्ट रो क्या है 3 and 4, इसको हम पहले मल्टीप्लाई करेंगे सेकंड मैट्रिक्स के फर्स्ट कॉलम से. ठीक है, सो कैसे मल्टीप्लाई करेंगे. दिस रो इज हैविंग 2 एलिमेंट्स और दिस कॉलम इज हैविंग 2 एलिमेंट. First element multiply by first element, second element will be multiply by second element. How? 3 multiply by 1, ठीक है, and 4 multiply by 3. ठीक है, 3 को आप 1 से मल्टीप्लाई करेंगे और 4 को आप 3 से मल्टीप्लाई करेंगे और यू विल प्लेस द प्लस साइन बिटवीन देम. दिस इज द स्ट्रैटेजी टू सॉल्व दिस क्वेश्चन. ठीक है, अब यहाँ पे ये नहीं है कि क्यों प्लस साइन आया क्यों माइनस साइन आया. दिस इज द स्ट्रैटेजी. ठीक है, तो हम लोग 3 मल्टीप्लाई बाय 1 फर्स्ट रो को मल्टीप्लाई करेंगे फर्स्ट कॉलम से पहले. 3 मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस का साइन लगाएंगे एंड 4 मल्टीप्लाई बाय 3. नो, अब इसी ही क्योंकि अब हमारे पास सेकंड रो में कितने कॉलम है 2 कॉलम है. अब फर्स्ट रो को मल्टीप्लाई करेंगे सेकंड कॉलम से. ओके, अब थोड़ा सा हम यहाँ पे गैप दे के लिखेंगे, साथ साथ नहीं लिखना. अब फर्स्ट रो दिस वन सेकंड कॉलम.
3 मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस का साइन प्लेस करेंगे एंड 4 मल्टीप्लाई बाय 0। फर्स्ट रो के एलिमेंट को सेकंड रो के एलिमेंट से 1 बाय 1 मल्टीप्लाई करेंगे। डन। नाउ कम टू द सेकंड रो। अब सेकंड रो के क्या एलिमेंट हैं? 5 एंड 6। ठीक है, फर्स्ट सेकंड रो को मल्टीप्लाई करेंगे पहले फर्स्ट कॉलम से, फिर सेकंड रो को मल्टीप्लाई करेंगे सेकंड कॉलम से। 5 मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस का साइन प्लेस करेंगे 6 मल्टीप्लाई बाय 3 सेकेंड रो मल्टीप्लाई बाय फर्स्ट कॉलम। ठीक है, नाउ कम टू द सेकेंड रो मल्टीप्लाई बाय सेकेंड कॉलम। 5 मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस का साइन प्लेस करेंगे 6 मल्टीप्लाई बाय 0। ठीक है, क्या किया हमने, यानी कि अब मल्टीप्लाई करने में हम फर्स्ट मैट्रिक्स की रोज को 1 बाय 1 सेकेंड मैट्रिक्स के जितने भी कॉलम्स होंगे उनसे मल्टीप्लाई करेंगे। फर्स्ट मैट्रिक्स की पहली रो को पहले उसके फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर उसके सेकंड कॉलम के एलिमेंट से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर उसकी सेकंड रो को फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे। नाउ वी विल फर्दर सॉल्व इट। 3 1s are 3 प्लस 4 3s are 12, 3 2s are 6 प्लस 4 0 0, 5 1s are 5 plus 6 3s are 18, 5 2s are 10 plus 6 0 0. No, our final answer will be 3 plus 12 15, 6 plus 0 6, 18 plus 5 23 and 10 plus 0 10. So my dear, this is the process to find the multiplication of two matrices. ठीक है, so अब let us we check कि whenever two matrices are not conformable for multiplication. ओके, ठीक है। अब let us suppose हमारे पास एक मैट्रिक्स है A is equal to 1 व 8 and B is equal to 2 minus 11 3 and 20. Are these two matrices are conformable for multiplication? Let's check. अब आप you can see the number of column in first matrix is equal to 1 and the number of rows in this matrix is 2. ठीक है, अब इसके नंबर ऑफ कॉलम इसकी नंबर ऑफ रोज के इक्वल नहीं है। इट्स मीन दैट दीज टू मैट्रिसेस आर नॉट कन्फॉर्मेबल फॉर मल्टीप्लिकेशन। ओके, दिस इज ऑल अबाउट द प्रोसेस टू फाइंड द मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू मैट्रिसेस। ठीक है, नाउ कम टू एन अदर टॉपिक, डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स। हाउ यू विल फाइंड द डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स? लेट अस सपोज we have given a matrix A is equal to 1 2 4 5. ठीक है, हमारे पास एक मैट्रिक्स है A and we have to find the determinant of this matrix. First of all I will tell you one more important thing. ठीक है, साइन ऑफ डिटर्मिनेंट। ठीक है, किसी भी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट फाइंड करने से पहले हम उसको डिटर्मिनेंट के साइन में लिखते हैं। ये इस तरह से 2 बार साइन बनाते हैं। दिस इज द साइन ऑफ डिटर्मिनेंट। फर्स्ट यू हैव टू फाइंड द डिटर्मिनेंट ऑफ दिस मैट्रिक्स। फर्स्ट ऑफ ऑल यू विल राइट the given matrix in this sign. ठीक है, A determinant, then you will write the value of this matrix in the determinant form. ये वैसे तो स्क्वायर ब्रैकेट में होता है ना, लेकिन इसको हम इस तरह से डिटर्मिनेंट यानी कि 2 बार्स किस तरह से, आपको याद होगा कि मैंने आपको चैप्टर नंबर 4 करवाया था D3 का, उसमें भी ये चीज़ थी कि 2 मैट्रिसेस 2 पॉइंट्स के बिटवीन डिस्टेंस फाइंड करते हैं तो फिर हम ये वाला साइन लगाते हैं। ठीक है, तो डिटर्मिनेंट में भी हम ये साइन लगाते हैं। सो हाउ यू विल फाइंड द डिटर्मिनेंट नाउ? ठीक है, अब डिटर्मिनेंट के पहले आपने इसको सिंबल में लिखना है, देन अब आपने इनको ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। दिस एलिमेंट्स विल बी मल्टीप्लाई बाय दिस एलिमेंट। दिस इज द प्रोसेस टू फाइंड the determinant of a matrix, and this element will multiply by this element. So 1 multiply by 5, you can write 5 multiply by 1 like this, 5 multiply by 1. अच्छा, एंड 4 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 2 से। यहाँ ऐसे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होती है, 4 मल्टीप्लाई बाय 2। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग लाइक दिस, जिस तरह से अभी मैंने आपको मल्टीप्लिकेशन करवाई थी और मैंने बोला था कि जब फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से एलिमेंट से मल्टीप्लाई करेंगे तो बीच में कौन सा साइन प्लेस करेंगे? प्लस का। सेम लाइक वेन एवर यू आर फाइंडिंग द डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स, देन यू विल प्लेस द माइनस साइन बिटवीन दीज 2 एलिमेंट्स। ठीक है, जैसे 1 मल्टीप्लाई बाय 5 एंड 4 मल्टीप्लाई बाय 2, तो इनके बीच में आप हमेशा माइनस का साइन प्लेस करोगे, एंड दिस इज अ स्ट्रेटेजी टू फाइंड द डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स। नाउ what will we do in our next step? 5 1s are 5 minus 4 2s are 8, and what will be our final answer? 5 minus 8 is equal to minus 3, which is not equal to 0. Why I have written this thing? ठीक है, मैंने ये चीज़ क्यों लिखी है कि -3 इज़ नॉट इक्वल टू 0? ये चीज़ मैंने इसलिए लिखी है कि देखें
इट्स नॉट कंपल्सरी कि जब भी आप किसी भी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट फाइंड करें तो उसका आंसर जीरो आए या नॉन जीरो है, ठीक है। इट्स द डिपेंड ऑन योर गिवन मैट्रिक्स, ठीक है। सम टाइम योर आंसर विल बी इक्वल टू जीरो, सम टाइम योर आंसर विल नॉट इक्वल टू जीरो, इट कैन बी ऑफ एनी नंबर, ठीक है। अगर जीरो आ जाएगा तो हमें क्या करना है, अगर जीरो नहीं आएगा तो हमें क्या करना है। लेट कम्स टू अनदर टॉपिक, इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स, ठीक है। व्हाट इज इनवर्स ऑफ द मैट्रिक्स, ठीक है, हाउ वी विल फाइंड द इनवर्स ऑफ द मैट्रिक्स। तो दिस थिंग विल बी यूज्ड इन दिस टॉपिक, ठीक है। सो इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स क्या होता है। इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स होता है हमारे पास, इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स होता है हमारे पास, लेट ए इज इक्वल टू, लेट अस सपोज कि वी हैव गिवन, let us suppose we have given a matrix A is equal to 1 2 3 7, ठीक है। let us suppose a matrix A is equal to 1 2 3 7, ठीक है। and we have to find A inverse, हमने इसका क्या फाइंड करना है, दिस मैट्रिक्स का हमने इनवर्स फाइंड करना है। एज यू नो हमने D3 में एक चैप्टर नंबर 2 किया था एंड वी हैड डन द पार्ट ऑफ द फंक्शन, ठीक है। हमने फंक्शन के बारे में पढ़ा था, ठीक है। हमें ये पता है दिस इज सिंपल फंक्शन को हम f से डिनोट करते हैं और उसके इन्वर्स को हम डिनोट करते थे f इन्वर्स से। सेम लाइक एक मैट्रिक्स है A, कोई भी मैट्रिक्स है A B C एंड सो ऑन, ठीक है। उनके इन्वर्स को हम किससे डिनोट करेंगे, A इन्वर्स से। यू विल नॉट राइट इट्स A-1, आपको पहले ये बातें सारी पता है। सो आई विल नोट दीज थिंग्स इन द डिटेल फॉर्म, क्योंकि आपको पता है कि जिस तरह से किसी फंक्शन के इन्वर्स को इस तरह डिनोट करते हैं, इसी तरह से किसी भी मैट्रिक्स के इन्वर्स को हम इस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे। सो लेट, हमारे पास एक मैट्रिक्स है 1 3 2 7 एंड यू हैव टू फाइंड द ए इन्वर्स, ठीक है। अब ए इन्वर्स फाइंड करना है। किसी भी मैट्रिक्स का इन्वर्स फाइंड आउट करने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल यू विल फाइंड द डिटर्मिनेंट ऑफ द गिवन मैट्रिक्स, ठीक है। सो फर्स्ट आपने ये मैट्रिक्स ए जो है इसको डिटर्मिनेंट के सिंबल में लिखें। आई एम अगेन रिपीटिंग, किसी भी मैट्रिक्स का इन्वर्स फाइंड आउट करना हो तो सबसे पहले उस मैट्रिक्स को डिटर्मिनेंट में लिखेंगे, ठीक है। उस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट फाइंड करेंगे। सो यू विल राइट इन डिटर्मिनेंट फॉर्म, देखो ए डिटर्मिनेंट एंड यू विल राइट द वैल्यू ऑफ दिस मैट्रिक्स इन डिटर्मिनेंट फॉर्म। नाउ यू विल मल्टीप्लाई बाय 1 by 7 and 3 by 2, 7 ones and 2 multiply by 3, and which sign you will place between them, minus. So what will be your answer, 7 ones are 7 minus 2 threes are 6. So here you can see that our answer is 1, which is not equal to 0. This is the most important thing which I have told you here. मैंने आपको बताया था कि अभी नेक्स्ट टॉपिक में मैं आपको ये चीज़ क्लियर ज़रा डिटेल में बताऊंगी। अच्छा, अब जब आप किसी मैट्रिक्स का इन्वर्स फाइंड आउट करते हैं तो उसका सबसे पहले डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करते हैं। डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करने के बाद हम लोग चेक करते हैं कि अगर उसके डिटर्मिनेंट का आंसर, ठीक है, नॉट इक्वल टू 0 आए, इट कैन बी ऑफ एनी नंबर, 0 के इक्वल ना आए, ठीक है। वो पॉजिटिव भी आंसर आ सकता है, वो नेगेटिव भी आ जाए, लेकिन नॉन इक्वल टू नॉन ज़ीरो, ठीक है, इक्वल टू 0 ना हो तो देन वी कांट फाइंड। अगर इक्वल टू 0 होगा तो फिर हम उसका इन्वर्स फाइंड आउट नहीं कर सकते। यानी कि अगर किसी भी मैट्रिक्स के डिटर्मिनेंट का आंसर 0 के इक्वल आ जाए तो आप लिखेंगे इन्वर्स इज नॉट, इन्वर्स विल नॉट एग्जिस्ट, इन्वर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा। लेकिन अगर डिटर्मिनेंट का आंसर कोई भी नॉन ज़ीरो नंबर आ जाएगा तो इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा, ठीक है। तो 7 माइनस 6 इज इक्वल टू 1 है, तो हमने इसको देखा कि इट्स नॉट इक्वल टू 0, सो इन्वर्स विल बी एग्जिस्ट, ठीक है। सो फॉर्मूला फॉर फाइंडिंग एन ए इन्वर्स। अब मेन चीज़ थी, पहले तो हमने चेक करना है कि इसका इन्वर्स एग्जिस्ट करता है कि या नहीं करता। उसके लिए हमने डिटर्मिनेंट फाइंड कर लिया। अगर डिटर्मिनेंट का आंसर 0 के इक्वल नहीं आएगा तो इट्स मीन्स डैट उसका आंसर, उसका इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा। नो, आवर नेक्स्ट स्टेप इज कि फॉर्मूला फॉर फाइंडिंग ए इन्वर्स। अब ए इन्वर्स कैसे फाइंड करेंगे, हमारा ए इन्वर्स को हमने इससे डिनोट करना है, ए इन्वर्स इक्वल टू, अब फार्मूला क्या होता है, दिस इज अ फार्मूला 1 ओवर डिटर्मिनेंट ऑफ ए, जो भी डिटर्मिनेंट ऑफ ए की वैल्यू आएगी वो इनटू, अब हमने हमारा जो गिवन मैट्रिक्स था उसमें थोड़ी सी हमने चेंजिंग करनी है। हम चेंजिंग क्या करेंगे, ये हमारे, आपको पता है ना, इस तरह की हमारे पास क्या होता है, दिस, हम जब इस तरह क्रॉस में एलिमेंट्स लेते हैं तो दिस इज नोन एज डायगनल, ठीक है। ये हमारा मेन डायगनल होता है, ये हमारा लीडिंग डायगनल होता है। इसका 2 डायगनल्स है ना, हम क्या करेंगे, जो हमारा ये मेन डायगनल होता है, ये वाला मेन डायगनल 1 and 7, इसकी हम इनकी एलिमेंट्स को रिप्लेस कर देंगे। रिप्लेस का मतलब है इनकी जगह चेंज कर देंगे। 1 की जगह पे 7 लिख देंगे, 7 की जगह पे 1 लिख देंगे, लाइक दिस 7 and 1। एंड व्हाट विल बी डू इन आवर लीडिंग
डायगनल, इन लीडिंग डायगनल के एलिमेंट्स के साइन चेंज कर देंगे। साइन चेंज करने का मतलब है इफ़ दे विल बी इन नेगेटिव यू विल प्लेस द प्लस साइन विद देम, और अगर वो प्लस में होंगे तो यू विल प्लेस द नेगेटिव साइन विद देम। अब हमारा जो लीडिंग डायगनल है वो क्या है, उसके एलिमेंट्स क्या है 3 and 2, दोनों पॉजिटिव हैं तो हम इनके साथ माइनस का साइन प्लेस कर देंगे, -2 and -1। सो व्हाट यू विल डू इन योर नेक्स्ट स्टेप, 1 over डिटर्मिनेंट ऑफ ए। डिटर्मिनेंट ऑफ ए का आंसर क्या आया था 1, और फिर ये हमारा जो रिप्लेस किया हुआ मैट्रिक्स था जिसमें हमने चेंजिंग की थी उनको हम इससे मल्टीप्लाई कर देंगे। 1 over 1 का मतलब क्या होता है 1, तो 7 अब ये हमारी क्या हो गई, सिंपल स्केलर मल्टीप्लिकेशन होगी। 7 1s are 7, -2 1s are -2, -3 1s are 3, 1 1s are 1। So this is the process to finding the inverse. Again I am repeating, किसी भी मैट्रिक्स का इन्वर्स फाइंड आउट करना हो तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू विल फाइंड द डिटर्मिनेंट ऑफ द गिवन मैट्रिक्स, देन अगर डिटर्मिनेंट का आंसर नॉन जीरो आएगा तो यू कैन फाइंड द इन्वर्स ऑफ द मैट्रिक्स। अगर डिटर्मिनेंट का आंसर जीरो ना आए तो यू कांट फाइंड द इन्वर्स ऑफ द अगर जीरो आ जाए तो फिर आप इन्वर्स फाइंड आउट नहीं कर सकते, और अगर जीरो ना आए तो यू कैन फाइंड द इन्वर्स ऑफ द मैट्रिक्स। अच्छा, वन मोर इम्पोर्टेंट थिंग विच आई विल डेफिनेटली टेल यू एट द एंड ऑफ माई लेक्चर, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ठीक है, सो माई डियर्स इन आवर फर्स्ट लेक्चर अबाउट द मैट्रिक्स, ठीक है, इसमें हमने टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स पढ़े थे, स्क्वेयर मैट्रिक्स, ठीक है, नल मैट्रिसेस, रो मैट्रिसेस एंड कॉलम मैट्रिक्स, सो एंड सो ऑन। लेकिन ये एक स्पेशल टाइप ऑफ मैट्रिक्स है, दिस इज कॉल्ड आइडेंटिटी मैट्रिक्स, और इसमें आप रिस्ट्रिक्टेड होते हैं। यू कैन सी डैट आइडेंटिटी मैट्रिक्स को लाइक जिस तरह से नल मैट्रिक्स को आप ओ से डिनोट करते थे और आपने कहा था कि अ मैट्रिक्स इन विच ऑल एलिमेंट्स आर जीरो लाइक दिस एंड इट कैन बी ऑफ एनी ऑर्डर। मैंने आपको बताया था ना, ये एनी ऑर्डर इसका हो सकता है। तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स को यू विल डिनोट बाय आई, किससे डिनोट करेंगे, आई से, और इसमें आपके पास आपकी बुक में इसमें सिर्फ ये 2x2 का मैट्रिक्स होगा, और इसमें हमेशा ये इस तरह के एलिमेंट्स होंगे 1 0 0 1। इसको आपने याद रखना है कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या होता है, जिसको हम यूनिट मैट्रिक्स भी बोलते हैं, जिसके मेन डायगनल के जो एलिमेंट्स होते हैं हमेशा 1 1 होते हैं, और लीडिंग डायगनल के एलिमेंट हमेशा क्या होते हैं 0 0 होते हैं। दिस इज एन आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2x2। आइडेंटिटी मैट्रिक्स कैन बी ऑफ 3x3 ऑर्डर, कैन बी ऑफ 4x4 ऑर्डर, लेकिन आपकी बुक में सिर्फ 2x2 ऑर्डर का ये मैट्रिक्स डिस्कस किया गया है। सो यू हैव टू रिमेंबर दिस मैट्रिक्स, दिस इज वेरी मच इंपॉर्टेंट थिंग विच आई एम गोइंग टू टेल यू, ठीक है। अच्छा, वन मोर थिंग कि ए, अगर 2 मैट्रिसेस हैं, टू मैट्रिसेस इज ए एंड बी, अगर आप ए को बी से मल्टीप्लाई करें, प्रोसेस मैंने आपको बता दिया है, ठीक है, पहले मैट्रिक्स ए लिखें या बी लिखें, या आप बी को ए से मल्टीप्लाई करें। अगर ए को बी से मल्टीप्लाई करने से और बी को ए से मल्टीप्लाई करने के लिए दोनों के आंसर इक्वल आ जाएं, और वो आंसर भी किस मैट्रिक्स के इक्वल आ जाए, आइडेंटिटी मैट्रिक्स के। आइडेंटिटी मैट्रिक्स यानी कि वो दो, ए को बी से मल्टीप्लाई करने से भी ये वाला एंड में आंसर आए, और बी को ए से भी मल्टीप्लाई करने से ये मैट्रिक्स आ जाए, यानी कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स, देन इट्स मीन्स दैट ए एंड बी विल बी इनवर्स ऑफ ईच अदर। Okay, so we will further discuss about all these things in detailed form with the solving of exercise in our meet class, and definitely on Friday we will discuss about all these topic in our meet class. Thank you so much.